آج جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا ہے ایٹا کے ذریعے ایکس فاٹا کے سی ٹی پوسٹ کے لیے جو بالکل سرٹیفائڈ ٹیچر کا آج ٹیسٹ تھا، اس کے کچھ MCQs آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے کویسچن آئے تھے اور ان کے جوابات کیا تھے۔ ہیلو السلام علیکم، مائنڈ ایبلٹی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا دوست امشید علی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح بتاتا چلوں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کیا کر لیں، آپ کو جو یہ ریڈ نشان نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو کس چیز کی ہے۔ بالکل آج جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا ہے ایٹا کے ذریعے ایکس فاٹا کے سی ٹی پوسٹ کے لیے جو بالکل سرٹیفائڈ ٹیچر کا آج ٹیسٹ تھا، اس کے کچھ MCQs آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے کویسچن آئے تھے اور ان کے جوابات کیا تھے۔ سوال نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے مورن، MOURN۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کی میننگ مانگی گئی تھی، تو اس کا جواب ہے سورو، اور غم کا اظہار کرنا۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے لائبریرین کیا پرووائڈ کرتے ہیں؟ تو وہاں پہ کچھ آپشن تھے، سمری آف دی بک، ایبریویٹڈ بکس، اوبریجڈ بک۔ یہ لفظ نیا تھا، میں نے اس پہ ٹک کر لیا، جبکہ میں نے جب سرچ کیا نیٹ پہ دیکھا تو تب مجھے وہاں سے پتا چلا کہ تقریباً سب کی میننگ سیم ہی ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی لگا لیں تو اس کا ہم کوئی 100% کریکٹ جواب نہیں بتا سکتے۔ اگلا ہمارے پاس ہے فرائضیز کس کے فالوورز کو کہتے ہیں؟ کس کے فالوورز کو فرائضیز کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حاجی شریعت اللہ۔ اس نے ایک تحریک شروع کی تھی جس کا نام تھا فرائضی تحریک، اور اس کے فالوور کو فرائضیز کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے اسکول وال از میڈ ڈیش بریک، انگلش کا ہے۔ اس میں ان لوگوں نے آپشن دیے تھے آف، ود، فرام، آن۔ تو یہاں پہ جو جواب ہے کہ اسکول وال از میڈ آف بریک، جواب میں ہمارے پاس کیا آئے گا؟ آف آئے گا۔ کویسچن نمبر 5 ہمارے پاس ہے۔ کویسچن نمبر 5 اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہے ڈیش اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، کہ جو ہمارے پاس ڈیش ہے وہ الفاظ سے زیادہ وہ لاؤڈر ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے ایکشن۔ ایکشن از لاؤڈر دین دا ورڈز۔ اگلا ہمارے پاس ہے 6 نمبر، اینڈ شوگر لیکٹوز فرمنٹڈ اینڈ ٹو۔ شوگر میں جو لیکٹوز ہے وہ جب فرمنٹڈ ہو جائے تو اس سے کیا بنتا ہے فرمنٹیشن کے بعد؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس سے گلوکوز بھی بن سکتا ہے، ایسڈ بھی بن سکتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے میوٹیشن از بینیفیشیل، ہارمفل، نیوٹرل، یا آل آف دیس۔ مطلب جو میوٹیشن ہوتا ہے، DNA میں چینجز آتی ہے، وہ نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے، یا اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یا یہ سب؟ تو اس کا جواب ہے آل آف دیس۔ وہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اور نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے انٹیلیجنس لیول آف ایج، مطلب وہ کون سی عمر ہے جہاں پہ انٹیلیجنس کا لیول ہے وہ پیک پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے آپشن دیے تھے 5 سے 10 سال کی عمر میں، یا 10 سے 15 سال کی عمر میں، 15 سے 20 سال کی عمر میں، یا پھر 20 سے 25 سال کی عمر میں۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ 15 سے 20 سال کی عمر میں۔ سائنسدان مانتے ہیں کہ جب ایج 20 تک چلی جائے اس وقت آپ کی انٹیلیجنس پیک پہ چلی جاتی ہے، اور 20 کے بعد گریجولی وہ انٹیلیجنس کا جو لیول ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو سوال آیا تھا وہ ہے پائی، ویلیو آف پائی۔ پائی کی قیمت کیا ہے؟ عام طور پہ اس کو ہم 22/7 بھی کہتے ہیں، کہ 22 کو 7 پہ تقسیم کر دو، یا پھر اگر تقسیم کر لے تو ہمارے پاس آئے گا 3.14۔ تو اس کا جواب ہے 3.14۔ کویسچن نمبر 10 ہمارے پاس ہے ریکور کا اپوزٹ کیا ہے؟ باقی تقریباً سملر ورڈز ہی ان لوگوں نے دیے تھے، لیکن یہاں پہ جو اپوزٹ مجھے لگ رہا تھا وہ تھا ڈائی۔ ریکور کا اپوزٹ ورڈ ہے ڈائی۔ مطلب کنفرم تو نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے کہ ریکور کا اپوزٹ ورڈ ڈائی ہے، لیکن موسٹ نیئرسٹ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہاں باقی جو آپشن تھا اس کے مطابق میں یہ زیادہ سیوٹیبل تھا۔ اگلا ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر 11، پروڈکٹ آف بایو ٹیکنالوجی، کہ ان میں سے کون سے پروڈکٹ بایو ٹیکنالوجی کے ہیں؟ تو وہاں پہ ان لوگوں نے جو آپشن دیے تھے ان میں تھے پینسلین، انسولین، ایکسیٹرا۔ مطلب جو نام دیے تھے وہ سارے بایو ٹیکنالوجی کے پروڈکٹ تھے، تو اس کا جواب تھا آل آف دیز۔ اگلا ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر 12، اورل۔ اورل کا سینونیم کیا ہے؟ ہمانی لفظ۔ تو اورل کا جو سینونیم لفظ آپشن میں دیا گیا تھا وہ تھا اسپیک۔ 13 نمبر پہ ہے کہ لونر ایکلپس کیا ہے؟ چاند گرہن کسے کہتے ہیں؟ پھر آپشن دیے تھے جب
सूरज ज़मीन और चाँद के दरमियान आ जाए, जब ज़मीन चाँद सूरज के दरमियान आ जाए, जब चाँद ज़मीन सूरज के दरमियान आ जाए, इन सब को मिला के। तो इसका सही जवाब है कि जब ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाए और सूरज की जो शुआएँ हैं वो चाँद तक ना पहुँचे तो हम कहते हैं चाँद ग्रहण हो गया है। अगला सवाल हमारे पास है, फेडरल गवर्नमेंट के कितने ब्रांचेज हैं? ये एक ही सवाल के 2 MCQs आए थे। पहले पूछा गया था कितने ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पे हमने जवाब दिया कि इसके जो ब्रांचेज है वो है हमारे पास 3। अगली में उन लोगों ने ऑप्शन दिए थे कौन कौन से है, तो ऑप्शन में हमारे पास जो है वो है जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ये 3 ब्रांचेज है फेडरल गवर्नमेंट की। अगला हमारे पास MCQs है, सोप क्या है? एसिड, बेस, न्यूट्रल। तो सोप हमारे पास बेस है, इसकी जो pH की वैल्यू हमारे पास है वो है 9 से 10 के दरमियान तकरीबन। अगला जो हमारे पास MCQs पेपर में आया था 17 नंबर पे, वो था नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम। जब किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये एटम इसमें क्या ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, दोनों इक्वल है या दोनों डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जवाब था कि जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगला सवाल अगर हम बात करें तो हमारे पास है रस्ट। जो रस्ट जंग है वो आम तौर पे किस चीज़ का ऑक्साइड होता है? तो उसमें ऑप्शन थे कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। तो हमारे पास इसका जवाब था आयरन ऑक्साइड, कि जो आयरन है उसके ऑक्साइड को हम रस्ट कहते हैं। मेनली रस्ट बना उसी से होता है। अगला सवाल हमारे पास है 19 नंबर पे, अपोजिट ऑफ प्रिडिक्शन, कि प्रिडिक्शन का अपोजिट क्या होगा? तो प्रिडिक्शन का जो अपोजिट हमारे पास है वो है मिस्ट्री। मतलब जो बाकी ऑप्शन उन लोगों ने दिए थे वो तकरीबन प्रिडिक्शन की ही हम मानी थे, तो जो अलग था वो हमारे पास था मिस्ट्री। उसके बाद मैथ का सवाल था कि 18, 24 और 30 में से 18, 24 और 30 इनका वो मालूम कर ले HCF। तो HCF मालूम करके हमारे पास जो जवाब आता है वो है 6, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास है कि एक बंदा है, सलीम नाम है उसका, उसकी एज 3 गुना है अली से। अब अगर अली सलीम से 18 साल छोटा है तो सलीम की एज बताओ, कि एज कुछ ऐसी हो कि जिसमें अली सलीम से 18 साल छोटा भी हो और जो हमारे पास सलीम है वो अली के 3 गुना हम उम्र भी हो, मतलब 3 गुना उसकी उम्र से ज़्यादा हो। तो इसका जवाब है 24, कि अगर सलीम की एज 24 साल है तो जो अली है उसकी एज 6 साल होगी। इस तरह सलीम अली से 18 साल बड़े होंगे और उसके 3 गुना उसकी उम्र होगी। अगला सवाल हमारे पास है, सेमन कमीशन किस साल आया था? तो इसका जवाब है 1928। 1928 में सेमन कमीशन भी आया था। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई और उसके बाद खैर आज़म के 14 नुकात 1929 को पेश किए गए और 1930 को फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया। अगला हमारे पास है ब्लैक शेड ऑफ फेयर ड्यू टू, ये जो बाल होते हैं ये काले रंग के, ये जो ब्लैक शेड है किस प्रोटीन की वजह से होता है? तो इसका जो जवाब है हमारे पास वो है मेलानाइन, यूमेलानाइन, फियोमेलानाइन। ये 3 प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक शेड के लिए। अगला सवाल हमारे पास है ये कुछ अजीब सवाल था, उसको मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरे ख्याल से मैथमेटिशियन इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। उन लोगों ने लिखा था दी NTH रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n ऑब्जर्वेशन इज। सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैंने मैथ ज़्यादा नहीं पढ़ी तो उस वजह से इसको मैं क्लियर डिस्कस ही नहीं कर पा रहा। तो इसका जवाब है जियोमेट्रिक मीन्स। अगला सवाल हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो इसका जवाब हमारे पास है कि A = बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले के तहत हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। 26 नंबर पे जो हमारे पास सवाल है वो हमारे पास है केमिकल यूज एंड शैम्पू। शैम्पू में कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं? तो जवाब है सरफेक्टेंट, सोडियम ल्यूराइल और सल्फेट एक्सेट्रा। ये 2 मेन केमिकल है जो शैम्पू में इस्तेमाल होते हैं। तो नाम याद कर ले, कभी भी किसी भी टेस्ट में आ सकते हैं, लेकिन इसका जवाब जो होगा वो ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा होगा कि ऑप्शन में उन लोगों ने कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया। अब अगर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब फॉर्मेशन ऑफ वाटर होती है तो उस वक्त कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है? मतलब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, न्यूट्रल, मतलब जिसमें नो हीट वेल रिलीज। तो इसका जवाब है एक्सोथर्मिक। जब ये रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज होती है।
अगला सवाल हमारे पास है सिंगल न्यूक्लियोटाइड कंटेंट। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं? तो इसका जवाब हमारे पास है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। पेपर में ये 3 ऑप्शन दिए गए थे और लास्ट में लिखा था ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे जवाब हमारे पास बन रहा था ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल हमारे पास है कि थर्ड और फोर्थ कॉन्टिनेंट हमारे पास कौन सा है? ये सवाल बिल्कुल क्लियर नहीं था कि उन लोगों ने किस लिहाज से पूछा था कि थर्ड और फोर्थ कौन सा है। अगर वो लोग पूछ रहे हैं कि साइज़ के लिहाज से बताओ तो एक अलग जवाब आएगा, अगर पूछ रहे हैं पॉपुलेशन के लिहाज से बताओ अलग आएगा। सो मैंने जो अपनी तरफ से लगाया, जो मुझे लग रहा था कि शायद ये हो, तो वो मैंने लगाया है वो क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। जी बिल्कुल, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका मैंने ये अपने अंदाज से लगाया। 2-3 वेबसाइट इसका जवाब कुछ यूँ ही मिल रहा है अभी, लेकिन ये सवाल मैंने फिर बताया कि इस तरह क्लियर नहीं है कि वो लोग किस बेस पे पूछ रहे थे। अगला सवाल हमारे पास है कि सर सैयद का पहला स्कूल किस शहर में बना, कहाँ पे बना था? तो इसका जवाब है अलीगढ़, जिसको बाद में कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है पोटैटो क्रोमोसोम, कि पोटैटो में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम 46 होते हैं, 46 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जो पोटैटो है उसमें 48 होते हैं। अगला सवाल हमारे पास है थैलेसीमिया की बीमारी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका जवाब उन लोगों ने जो ऑप्शन दिए थे वो थे RBC, WBC मतलब रेड ब्लड सेल, या वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट एक्सेट्रा। तो इसका जवाब था रेड ब्लड सेल। अगला सवाल हमारे पास था कि अगर 200 में से किसी के मार्क्स हैं 98 तो उसकी परसेंटेज क्या होगी? कैलकुलेशन के लिहाज से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कैलकुलेशन के लिहाज से इसकी परसेंटेज बनती है 49%। अगला सवाल हमारे पास है रेक्टेंगल एंगल इंटरनल सम। हमारे पास एक रेक्टेंगल एंगल है, उसका जो इंटरनल सम है, मतलब जिसमें अंदर जो जाविये बन रहे हैं उनको जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा? आपको साइड पे डायग्राम नज़र आ रहा होगा, तकरीबन हर एक कॉर्नर पे 90 का जाविया बन रहा है, तो उनको जब हम जमा करते हैं तो 360 इसका जवाब आता है। उसके बाद सवाल है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा है, या फिर इस तरह भी आ सकता है कि कौन सा सिविलाइजेशन तकरीबन 4000 से 8000 साल पुराना है। तो इसका जवाब है इंडस सिविलाइजेशन। अगला सवाल है डाउन सिंड्रोम किस चीज़ से रिलेट नहीं करता? डाउन सिंड्रोम वो बीमारी है जो आपकी बॉडी में डिफेक्ट पैदा कर सके। डाउन सिंड्रोम में आपकी फिजिकल अपीयरेंस में जब मसला आता है उसको हम कहते हैं। तो उनमें जो ऑप्शन था जो ताल्लुक नहीं रख रहा था वो था मेंटल रिटार्डेशन, कि इसका डाउन सिंड्रोम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी अगर हाइट का मसला है, कुछ इस तरह बाकी चीज़ें हैं जिससे बॉडी फिजिकली अजीब लग रही है, तो वो तकरीबन उसका ताल्लुक डाउन सिंड्रोम से है। अगला हमारे पास है विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? जवाब है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद है कि परसेंट किसे कहते हैं? परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है 1/100। 39 नंबर पे सवाल हमारे पास है ब्यूटी इज इन द आई ऑफ दी। पश्तो में उर्दू में हमारे पास एक ज़र्ब मिसाल है कि खूबसूरती देखने वाली की आंखों में होती है, तो इसका जवाब था बी होल्डर, कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बी होल्डर। 40 नंबर पे है मोनजोदड़ो ग्रेट बाथ। मोनजोदड़ो ग्रेट बाथ किस चीज़ के लिए लिया जाता था? तो उन लोगों ने ऑप्शन दिए थे कि शादी के लिए, काम जाने से पहले लिया जाता था, या मजहबी रसूमात से पहले। तो उसका जवाब है रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस फंक्शन। अगला सवाल हमारे पास है क्रिप्टोप्लाज्म किस चीज़ का दूसरा नाम है? साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियोप्लाज्म का, या सेल मेम्ब्रेन का? तो इसका जवाब है कि इन तीनों में से किसी का भी नहीं, नॉन ऑफ दीज का जवाब आना था यहाँ पे। 42 नंबर पे सवाल है केमिकल चेंज, कि इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है? ट्रांसपैरेशन, एवापोरेशन और रस्टिंग। तो क्लियर सी बात है, रस्टिंग हमारे पास केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 43 जो आया था, जिसका मुझे खुद ना उस वक्त समझ आ रही थी ना अभी जवाब मिल रहे हैं। 43 पे हमारे पास सवाल है कि केमिकल यूज्ड टू फिल्म प्रोसेस, कि एक फिल्म के प्रोसेस में कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं? सो इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा। ये सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, अगर किसी को समझ आई हो तो ये सवाल मुझे कमेंट में समझा दे, और अगर कहीं पे आपको गलती नज़र आई हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ होती है, तो जहाँ पे आपको गलती नज़र आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि मैं दोबारा उसकी करेक्शन कर सकूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब दीजिए अपने दोस्त हमशेद अली को इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह नेगहबान।